کہ ہم 10ویں کو رکھیں گے اور 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کو ملائیں گے یا 11ویں کو ملائیں گے. تو کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ یہ ہماری اس اعتبار سے یہ پیر کا دن جو ہے 10ویں محرم ہے. بھائی پیر کا دن 10ویں، تو یا تو اتوار اور پیر کو 2 روزے رکھ لیں یا پیر منگل 2 روزے رکھ لیں. لیکن رکھ لیں کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ یا تو اتوار اور پیر، یا تو پیر اور یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں اور. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روزے رکھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان کہنے لگے اللہ کے رسول یہ محرم کے 2 روزے رکھے، چلو 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا دے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا دے، ہم تو 2 روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ ہم کو دینے والا کیا؟ اللہ ہم کو دینے والا کیا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس یہ 2 روزے رکھ لو، یہ 2 روزے رکھ لو اور قیامت تک یہ 2 روزے رکھتے رہو. اللہ فرماتا میرے بندے اگر یہ 2 روزے رکھے گا جہنم کا دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آنے دوں گا. تو کون کون تیاری ہے 2 روزے رکھیں گے نا؟ اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول. 9ویں 10ویں یا 10ویں اور ایک بات اور بھی بتاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی محرم میں. بولو نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی. اسی لیے کیا فرمایا؟ 10ویں محرم یعنی ہمارے اعتبار سے اتوار کی مغرب سے لے کر پیر کی مغرب. بھائی اسلامی قانون کے مطابق اس اتوار کی مغرب سے لے کر پیر کی مغرب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 24 گھنٹے ذرا کھانے پینے میں وسعت کر دے. کھانے پینے میں انہیں تھوڑا کھانا اچھا ہونا چاہیے، انہیں کپڑے بھی. لیکن کس کو کہا؟ اعلیٰ اہلہ و عیالہ، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے ماں باپ پر. تو کرو گے انشاءاللہ. اتوار کی مغرب، میں کہتا ہوں اتوار کی مغرب کے بعد جو کھانا بنے نا گھر میں، وہ کھانا کیسا بنے؟ روز کے مقابلے میں اچھا کھانا بنے. بیوی کے کپڑے بھی اچھے ہو، بچوں کے کپڑے بھی اچھے ہو، اپنی اماں کا کپڑا بھی اچھا ہو، اپنے ابا کا کپڑا بھی اچھا ہو. ہمارے نبی نے فرمایا، کہہ دو سبحان اللہ، یہ ہمارے اعتبار سے اتوار کی مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک یعنی 10ویں محرم عاشورہ میں سحری بھی کرے گا، عاشورہ میں افطاری بھی کرے گا اور عاشورہ میں 1 رات پہلے کھانا بھی کھائے گا. تو کھانا بھی اچھا کر دے، یعنی سحری بھی اچھی کر دے، افطاری بھی اچھی کر دے اور بیوی اور بچوں کے لیے اچھے کپڑے پہنا دے اور ماں باپ کو اچھے کپڑے پہنا دے. ہمارے نبی فرماتے تو ایک دن ایسا کرے گا اللہ کہتا پورے سال تیرے گھر پر روزی کی برسات برساتا رہو گا. نعرہ تکبیر، محمد قدم. تو کرو گے انشاءاللہ. اتوار کی رات کو کھانا میرے کو بلاؤ، اس لیے میں تو تمہارے گھر میں کھانا اچھا بنوا رہا ہوں. بیوی اور لڑائی مت کرنا اتوار کی رات کو. 10ویں محرم کو جھگڑا مت کرنا، اس لیے کہ 10ویں محرم میں جو کرے گا وہ سال تک ہوتا رہے. دیکھو میں حدیث سنا رہا ہوں تاکہ جن کو دماغ میں شک شبہ ہو نا تو نکل جائے. میں ڈائریکٹ آپ کو حدیث سنا ہوں. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ اپنے سامنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على اهله وعياله يوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی. اللہ کے رسول پاک محمد مجتبی احمد مصطفیٰ نے فرمایا 10ویں محرم کو کھانے میں، سحری میں، افطاری میں اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر تھوڑا ہاتھ لمبا کر دے، تھوڑی کشادگی کر دے. اللہ سال بھر روزی کی بارشیں تیرے گھر میں برساتا رہے گا. تو روزہ بھی رکھنا ہے. دیکھو اللہ ہمارے نبی کی ذات بابرکت، تو دیکھو بھوکا بھی رہا اور کھانا بھی خوب کھلایا. دونوں ہوا نا. روزہ بھی رکھنا ہے لیکن سحری زوردار اور افطاری بھی زوردار. اپنا کپڑا بھی اچھا، بیوی کا کپڑا بھی اچھا، بچوں کا کپڑا بھی اچھا، اپنی ماں کا کپڑا بھی اچھا، اپنے ابا کا کپڑا بھی اچھا. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں تجربہ کر کے دیکھو. بڑے بڑے علماء نے تجربہ کیا. یہ 24 گھنٹے میں تھوڑا ہاتھ لمبا کر دے، خوب لٹا دے. اللہ کہتا تو جتنا لٹائے گا تو بندہ ہو کر لٹاتا، اب سال بھر میں خدا ہو کر تجھ پر لٹانے والا. تو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. روزہ بھی رکھنا اور اچھا، لیکن کس کے اوپر؟ اہل و عیال کا لفظایا، یہ نہیں کہ پورے محلے والے کو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے سب کریں گے انشاءاللہ. تو خیر میرے پیاروں، اب میں جو بات پر آ رہا ہوں نا، انبیاء کی باتیں اتنی ٹھیک ہے. اب باقی 29 تاریخ انشاءاللہ. لیکن یہ جو باتیں ہم نے کی اس کا ایک مذاکرہ ہو جائے. کریں گے نا، مذاکرہ کریں گے نا میرے پیارے دوستوں. ساتھ میں کہہ دو یہ سارے واقعات کون سے مہینے میں؟ غم کے خوشی
अरे बोलो ना, गम के खुशी, साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन सा महीना, सब कहो मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन सा महीना, हजरत आदम को नबी बनाया गया कौन सा महीना, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन सा महीना, हजरत नूह बादशाह बन गए तो कौन सा महीना, हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया तो कौन सा महीना, हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकाला गया तो कौन सा महीना, हजरत मूसा किनारे पर पहुंच गए और फिरौन पापी डूब गया और हजरत मूसा पूरी जमीन के बादशाह बन गए तो कौन सा महीना। अरे हम खुशी के मारे रोजा रखे तो कौन सा महीना, हम इतवार की रात को दावत करे इसलिए कि 10वीं मुहर्रम की रात है तो कौन सा महीना, हम सहरी में जोरदार सहरी करे तो कौन सा महीना, इफ्तारी करे तो कौन सा महीना, बीवी बच्चों को अम्मा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए खुशी के मौके पर तो कौन सा महीना। मेरे प्यारों, जब सारे नबियों को इतनी खुशी मिली है तो हमारे नबी को भी तो इस महीने में खुशी मिली होगी ना। ऐसे नहीं, ऐसे चुपके चुपके क्यों बोलते हो, कहो ना खुशी मिली होगी ना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को नबूवत दी, लेकिन हमारे नबी फरमाते सबको कुछ कुछ दिया, मुझको सब कुछ दिया। भाई अब तो तू जोर पर अब तो भाई तू बिल्कुल चुस्त रहना, इसलिए हमारे आका ताजदार मदीना की बाबरकत बातें आ जाए तब तो हमको दीवाना बनना चाहिए। बोलो बनेंगे दीवाना, बनेंगे भाई, बनेंगे दीवाना। मेरी बात सुनते जाना, जब सारे नबियों को ये मिला तो हमारे नबी को मुहर्रम के महीने में क्या मिला, अफसोस है आज तक हमको नहीं मालूम कि हमारे नबी को मुहर्रम के महीने में क्या मिला। हाँ, कितने सालों से मुहर्रम मनाता है, कितने सालों से खाता और खिलाता है और कितने सालों से सड़क पर चिल्लाता है। अरे सड़कों पर चिल्लाता है लेकिन उसको सड़क पर से उतारो और पूछो तू तो उम्मती है ना, तेरे नबी को मुहर्रम के महीने में क्या मिला। मेरे को तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज खाना बहुत अच्छा पका है। तो सही कहना गलत कहना मेरे प्यारे दोस्त, इसे तुम तैयार रहो, मैं बताता जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। एक सांस में अल्लाह करे, अल्लाह सब कबूल फरमा ले। मेरे प्यारों साथ में कह दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अरे मेरे दोस्तों सीधा ठोक कर कहेंगे, हमारे नबी फरमाते सारे नबियों को कुछ कुछ मिला, अल्लाह ने हमारे नबी को सब कुछ दे दिया। नारे तकबीर। मेरे प्यारों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना कानून बहुत सख्त है, कानून बहुत सख्त है। इतना सख्त कानून है, अगर कपड़े के ऊपर नापाकी लगे, भाई हमारे कपड़े पर नापाकी लगे तो हम लोग पानी में जाके, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, तौरात में लिखा था तेरे कपड़े पर नापा किया है, काट के फेंक देना, काट के फेंक देना। अगर बटन पर नापाकी लगे तो किसी लोहे के जरिए से खुरच डालना। कैसा कानून था हजरत मूसा की शरीयत में। जलाल, बोलो साथ में बोलो, हजरत मूसा की शरीयत में जलाल, खतरनाक कानून, डेंजर कानून। हजरत मूसा की शरीयत में जलाल जलाल। और हजरत ईसा की जब शरीयत आई तो इंजील में लिखा जमाल, नरमी नरमी नरमी, इतनी नरमी कि इंजील में लिखा कोई तेरे चेहरे पर एक जोर का तमाचा मारे और जाने लगे, उसको कहे भाई भाई अल्लाह ने 2 गाल दी, इधर भी मांगू। हम लोग करेंगे ऐसा? अरे करेंगे ऐसा? हम तो पहला ही नहीं खाएंगे तो दूसरे खाने की कहां बात आती है। इसलिए क्या गलत क्या माने। अब सुनना मेरे प्यारो, हजरत ईसा की शरीयत में जमाल, हजरत मूसा की शरीयत में जलाल। याद रहेगा इंशाअल्लाह। एक जगह गर्मी, एक जगह नरमी, एक जगह गर्मी, एक जगह नरमी। हजरत मूसा की शरीयत, मेरे प्यारो दोस्तों सुनो, हजरत मूसा की शरीयत आई, जलाल जलाल नजर आया। हजरत ईसा की शरीयत आई, जमाल जमाल नजर आया। और मुस्तफा की शरीयत आई तो कमाल ही कमाल नजर आया। वो हजरत मूसा, सुनो, वो हजरत मूसा पहाड़ पर गए, पहाड़ पर, और 24 घंटे अल्लाह से बातें की है। बोलो कितने घंटे? हजरत मूसा 24 घंटे अल्लाह से बातें कर रहे, और बातें करने के बाद कहते अल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह मैं समझ गया, अल्लाह मैं समझ गया। तू 24 घंटे मुझसे बातें करता, मेरे से बढ़कर कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह की आवाज आई, मूसा खामोश, तुझसे बढ़कर एक नबी होगा, तू कलीमुल्लाह है, आने वाला हबीबुल्लाह बनने वाला। हजरत मूसा ने पूछा अल्लाह ए परवरदिगार मैं कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह, मैं कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह,
रहा है वो हबीब अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। नारे तकबीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते, रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मुझे कौम को दावत देना है, मेरा सीना खोल दे। जब हमारे नबी को खबर मिली कि मूसा ने ये दुआ अपने जमाने में मांगी, हमारे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब हाथ नीचे रखो, वो मूसा थे जिन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह मेरा सीना खोल, तेरे तो पैदा होते ही मैंने तेरे सीने को खोल दिया। नारे तकबीर। सुना, हमारे नबी पाक साहब ने पूछा मेरे पैदा होते ही अल्लाह तूने मेरे सीने को खोल दिया। हज़रत मूसा को तो मांगना पड़ा, इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरा सीना खोल, अल्लाह मेरा सीना खोल, और अल्लाह तूने मेरे सीने को पहले से खोल दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे महबूब क्या याद नहीं, तुम्हारी उम्र 2 साल की थी, हमने सीने को निकाला था, तुम्हारे दिल को बाहर निकाला था और जमजम के पानी से तो धोया था। जब तुम्हारी उम्र कितनी थी, सुनते जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे महबूब, ए मेरे राज दुलारे, तुम्हारी उम्र 2 साल की थी, हमने तुम्हारे दिल मुबारक को निकाला, हमने जमजम के पानी से धोया। ये पहली मर्तबा हुआ। जब तुम्हारी उम्र 12 साल की हुई तब भी हमने आपके सीने से मुबारक दिल को निकाला और हमने जमजम के पानी से धोया। हमने जमजम के पानी कहो, हमने जमजम के पानी से धोया। और ये मेरे महबूब, जब तुम गारे हिरा में थे और पहली मर्तबा तुम पर कुरान उतरने वाला था, उससे पहले भी हमने तुम्हारे सीने से दिल मुबारक को निकाला और जमजम के पानी से धोया। और मेरे महबूब, पहली मर्तबा जमजम के पानी से धोया, उम्र थी 2 साल, फिर जमजम के पानी से धोया, उम्र थी 12 साल, फिर जमजम के पानी से धोया, उम्र थी 40 साल। और मेरे महबूब, जब तुम मेराज पर आए, मैंने तुम्हारे दिल को निकाला, जमजम के पानी से नहीं, अपने हाथों से मैंने धोया। नारे तकबीर, मोहम्मद सल्लल्लाहु। हजरत सुलेमान को बड़ी हुकूमत मिली कि नहीं मिली? हजरत सुलेमान को बोलो ना, मिली ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर हुकूमत मिली, तख्त पर बैठ गए और ऊपर चले। बोलो कहां चले? ऊपर। एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह सुलेमान को वो हुकूमत तूने अता की कि वो आसमानों को छूने वाले थे। इतना ऊपर जाते थे, लगता था आसमान से छू जाएंगे, लेकिन कभी आसमान को छुए? आसमान को छुए? एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तूने सुलेमान को वो हुकूमत दी, वो हवा में उड़े, करीब आसमान पे चले गए। अल्लाह ने फरमाया, मेरा महबूब इंतजार कर, मेराज का वक्त आने वाला, तुझे पहला आसमान नहीं 7 आसमानों को पार कराऊंगा, 8 जन्नतों को पार कराऊंगा, सिदरतुल मुंतहा को पार कराऊंगा, मेरे अर्श पर बुलाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू भी रहेगा। नारे तकबीर। बताओ भाई, हमारे नबी की शान से बढ़कर किसी की शान होगी? साथ में कहो सल्लल्लाहु। अब वही सवाल, मुहर्रम महीने में हमारे नबी को क्या मिला? मालूम? ऐसे तो बहुत ज्यादा सवाल थे जिसके जवाब हमको मालूम। चलो, जब बात आई तो एक अजीब दास्तान, हजरत अली की बात सुना। वक्त है ना आप लोगों के पास? पूरी रात है। सबके पास वक्त है। कोई मुझे पूछता है कि तेरी बीवी तुझे क्या बोलेगी? मौलाना हबीब साहब और ये अब्दुल्ला भाई दोनों मेरे घर आ गए थे कि नहीं मुहर्रम में अहमदाबाद तो आने का। मैंने भी इनकी शर्म में क्या बोला, मैंने कहा मैं आऊँगा, जुमा को आऊँगा। ये गए, उसके बाद मेरे घर में मेरी क्या गद बनी होगी। तो हर एक जुमा को छुट्टी मिलती है, वो भी अहमदाबाद के नाम। लेकिन खैर मेरे प्यारों, जब आया हूँ तो कुछ देऊं और आप कुछ लोगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी को इनामात मिले कि नहीं मिले? बोलो, इनामात मिले कि नहीं मिले? मैं आपको बात बताऊं, ऐसे अजीब अजीब सवाल। एक मदीने में एक यहूदी था, हमारे यहाँ नबी के कमालात पर आ रहे इंशाअल्लाह। क्या मदीने में यहूदी था जिसका नाम था मुजर। बोलो क्या नाम था? मैं आपको मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूँ, जवाब दो। देखता हूँ कौन देता कौन नहीं देता। उलमा से नहीं पूछता, आपसे पूछता हूँ। मदीने में यहूदी था मुजर, उसने पूरे कुरान को पढ़ा, सारी हदीसों को पढ़ा और हजरत अली के पास, वो यहूदी क्या नाम था? मुजर। हजरत अली के पास आया, कहा मैंने तुम्हारे नबी की सब बातों को पढ़ा, मुझे यकीन हो गया। कहो सुबह। कहा मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मुझे यकीन हो गया। कहा लेकिन एक हदीस मेरे को समझ में नहीं आई, अगर वो समझ में आ जाए तो अभी ईमान कबूल कर लो। कौन कह रहा?
मुजर यहूदी, एक हदीस समझ में ना आई और वो भी पूरी नहीं, आधी समझ में नहीं आई। अगर वो समझ में आ जाए तो अभी तेरे हाथ पर अली, मौला अली, तेरे हाथ पर अभी मैं ईमान कबूल कर लूं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो इतने खुश हो गए, बता बता भाई कौन सी हदीस उसको समझ में नहीं आई, और वो भी पूरी हदीस तो नहीं, आधी हदीस समझ में ना आई। बता, मुझे ये हदीस समझ में नहीं आई कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का, यानी मेरे अंदर इल्म नॉलेज एजुकेशन, मेरे अंदर इल्म, हमारे नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और मेरे इल्म के शहर का दरवाजा अली है। तो कहा मुझे ये तो समझ में आ गया कि मेरे नबी इल्म के शहर थे, बोलो थे कि नहीं थे? मेरे नबी सर मुबारक से लेकर पांव के नाखून मुबारक तक इल्म ही इल्म, इसलिए कि इल्म के माने नूर, और नबी से बढ़कर कौन नूरानी होगा? तो यहूदी मुजर ने कहा ये तो समझ में आया कि नबी इल्म के शहर है, लेकिन नबी ने ये कहा कि मेरे शहर का दरवाजा कौन है? इसका मतलब है कि नबी के पास जो ठाटे मारता हुआ इल्म था उसका एक हिस्सा अली के पास भी तो होना चाहिए। तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम आलिम हो, अगर हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, मैं ईमान कबूल कर लूंगा। तो इम्तिहान किसका शुरू हो गया? अरे बोलो ना, इम्तिहान किसका शुरू हो गया? हालांकि हदीस अपनी जगह पर बराबर, बोलो बराबर है कि नहीं? क्या फरमाया? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया मैं सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक मैं इल्म का खजाना हूं और मेरे इल्म का दरवाजा कौन? तो यहूदी मुजर कहता है कि अल्लाह के रसूल तो है ही इल्म का खजाना, लेकिन तुम भी तो इल्म के दरवाजे हो ना। मैं 5 सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे ईमान? अरे भाई आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा? मैं जवाब दूं या ना दूं, मुझे इससे खुशी ना होगी, खुशी तो इससे होगी कि तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। अब वो सवाल पूछने वाला कौन? बोलो, सवाल पूछने वाला कौन? कितने सवाल पूछ रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, जवाब दोगे इंशाअल्लाह। आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो वो सवाल पूछ रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है? मुजर यहूदी सवाल पूछता और कहता है कि अली तुम इल्म के दरवाजे हो, नबी इल्म का शहर है, तुम इल्म के दरवाजे हो, मेरे सवाल का जवाब दे दो, ईमान कबूल करूंगा। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा इंसान है जो दुनिया में आया है लेकिन न माँ है न बाप है? न माँ है ना हजरत आदम। अरे बोलो ना हजरत, अरे इसलिए किसी ने पूछा ना कि सबसे सुखी जोड़ा दुनिया में कौन सा है? आदम और हवा। क्यों? दोनों तरफ सास ससुर थे ही नहीं, सास ससुर हो तो झगड़े हुए ना घर में। सबसे पहला इंसान कौन जिसकी ना अम्मा ना अब्बा? कौन? हजरत है। चलो एक सवाल का जवाब हो गया। वो मुसलमान ने दूसरा सवाल पूछा कि वो कौन सा इंसान दुनिया में आया जिसकी माँ तो है लेकिन अब्बा नहीं? हजरत ईसा। अरे बोलते जाओ ना, जवाब बोलते जाओ ना। हजरत है, हाँ मैं भी देख रहा हूं कहां तक तुम चलते हो। हजरत है ईसा अलैहिस्सलाम। वो मुजर यहूदी तीसरा सवाल पूछता है कि पूरी दुनिया में एक औरत आई है, ऐसी औरत आई है जिसके पेट में बच्चा रहा, जिसके पेट में बच्चा रहा, उसके बाद दर्द हुआ, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब बच्चा पेट में आया तो 2 मिनट में आया, और दर्द हुआ तो 2 मिनट का दर्द हुआ, और 5वें मिनट में बच्चा पैदा हो गया। ऐसी प्रेगनेंसी तो बहुत अजीब है। अरे बोलो अजीब है क्या? हमारी माँ बहनों को आपने देखा होगा कितने महीने? 9 महीने। और यहाँ वो मुजर यहूदी पूछता है बताओ वो कौन सी औरत है कि 2 मिनट में तो बच्चा तो आलिम है, तो मुफ्ती है, तो मुहद्दिस है, तो मुजव्विद है। मैंने वो 6 पारे पढ़ा था, उसके बाद में मौलाना मारे तो छोड़ दिया। मतलब तेरे को कुरान पढ़ना आता? बोलो कुरान पढ़ना आता? तो चलो तेरे पास दीन नहीं, तू दुनिया की कौन सी डिग्री लेकर घूमता है? तू डॉक्टर है, बैरिस्टर है, लॉयर है, वकील है, आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, तेरे पास कौन सी डिग्री है? कौन सी? वो भी कुछ मेरे को आता। इसका मतलब तो अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप। और इतना का तो ऐसा है जो टी शर्ट पहनेगा, जींस पहनेगा, मोटरसाइकिल पर बैठेगा, आपने देखा होगा ना, बम्पर को तो ऐसा खुदाएगा और कहेगा वो नकली खान। असली खान तो अहमदाबाद में पैदा हुआ। असली खान तो करता कि नहीं करता? और अगर किसी की शादी हो ना, ओहो उस वक्त हमारे जवान को देखने का अंगूठा छाप, उसको ना दीन आता ना दुनिया आता। बल्कि अगर उसको अहमदाबाद का रिजर्वेशन फॉर्म दे दो, अहमदाबाद में जो रिजर्वेशन रेलवे स्टेशन पे जो रिजर्वेशन फॉर्म मिलता वो दे दो कि इसको भर दे, उसको वो फॉर्म भरना भी नहीं आता। लेकिन शादी में तो ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना
दिखावा ना, अपने घर ऊंचे ऊंचे जूते पहनेगा और खाट खाट चलेगा, और जहां औरतें बैठी होगी ना वहां खाना बांटने जाएगा, वहां खाना बांटने, और क्या कहेगा, ए भाई जल्दी 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 चावल जल्दी आना, इधर देना, और इतने में तो मोबाइल गेम निकालेगा, और मोबाइल भी इतना जबरदस्त, हाँ हेलो ओके ओके आई एम बिजी ओके ओके। तो मुझे एक भाई ने कहा कि मौलाना मौलाना ये घंटी नहीं बजती और ये मोबाइल पे बातें करता। मैंने कहा अहमदाबाद का जवान जिब्राइल का फोन आया है। करते नहीं करते ऐसा, करते कि नहीं करते? और मालूम नहीं ये बालों में क्या है, तुम्हारे बालों में जुए पड़ी है, थोड़ी थोड़ी देंगे। अभी ये जेब से कंघी निकाल गई, घुमाया, ओ तो अच्छा है, अल्लाह ने आईने को ताकत नहीं दी, मैंने रोज थप्पड़ मारता तेरे को, कम वक्त नबी का चेहरा तोड़ता है और इतराता है। हालांकि चेहरा तो देख, तेरा चेहरा तो देख, हाँ वो अली जिनके लहू से हुसैन पैदा हुए, जिन्होंने करबला के मैदान में इस्लाम को जिंदा किया, वो अली शेर खुदा थे। और तेरा चेहरा देख, बगैर दाढ़ी का टिल्ले जैसा दिखता है। सही चेहरा गलत चेहरा, फिर क्या कहेगा भाई, दाढ़ी वाड़ी के ठिकाने नहीं है, सब जगह से कटिंग कटिंग कटिंग। और फिर क्या कहेगा, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन। अरे पहला मुंह तो आईने में जाके देख, क्या वो शेर खुदा से तेरा चेहरा देख तो सही, मैं गलत कह रहा हूँ सही? हर बात थोड़ी इधर उधर होगी ना, माफ करना। बात किस पर चल रही थी? हाँ, चौथा सवाल आया, क्या सवाल आया? वो कौन सा पत्थर है जिससे अल्लाह ने कौन से जानवर को पैदा किया? मेरे दोस्तों सुनो, पत्थर से भी अल्लाह ने जानवर को पैदा किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उठनी। क्यों? हजरत सालेह, नाम याद रखो, कौन? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा एक अल्लाह एक अल्लाह एक अल्लाह, कौम ने कहा कुछ बताओ, कोई कमाल तो बताओ ताकि हमें मालूम हो कि तुम अल्लाह के नबी हो। सामने बड़ा पत्थर था, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं उंगली की, किसकी तरफ उंगली की? उंगली उठाई पत्थर की तरफ, पत्थर फटाए और उसमें से उठनी निकली है। हजरत सालेह ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई उठनी है, इसको मारना नहीं, इसको धक्का नहीं देना, वरना एक खुदा की उठनी को मारोगे अल्लाह पूरी कौम को बर्बाद और तबाह कर देगा। लेकिन हुआ ऐसे ही, उठनी आ गई। बोलो उठनी। हजरत सालेह ने क्या फरमाया? हादिही नाक़तुल्लाह लहा शिरबु व लकुम शिरबु यौमिन मालूम। हजरत सालेह ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से आने वाली, बोलो ना, अल्लाह की तरफ से आने वाली उठनी। लेकिन कौम ने माना, बहुत मारा बहुत मारा। जिस दिन वो उठनी गिरी है जमीन पर, उठनी गिरी है जमीन पर, अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद और तबाह कर दिया। कुरान में लिखा इदिन बाज़ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। ये कुरान में लिखा हुआ। क्या कितने सवाल हो गए? पांचवी चीज वो मुंजर यहूदी ने बहुत अजीब चीज पूछी कि एक चीज जो इंसान के साथ लगी है, दो चीजें जो इंसान के साथ लगी है लेकिन ये दोनों कभी साथ होती नहीं, दोनों में बड़ी दुश्मनी। क्या कहा? पांचवा सवाल वो मुंजर कहता है, वो यहूदी कहता है अली, ए मौला अली, आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दो, आखिरी सवाल है। दो चीजें ऐसी है जो इंसान के साथ लगी है लेकिन दोनों में मिलाप नहीं होता, दोनों दुश्मन है। हजरत अली ने फौरन कहा हाँ, मौत और जिंदगी। इंसान के साथ लगी है मौत भी, लेकिन जब मौत हो तो जिंदगी नहीं है। इंसान के साथ लगी है जिंदगी भी, और जब जिंदगी हो तो मौत। बस इतना कहना था मेरे प्यारो, इतना कहना था। मुज़ल यहूदी ने क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यकीन हो गया कि नबी अगर इल्म के शहर है तो मौला अली को अल्लाह ने उसका दरवाजा बना दिया है। तो बात समझ ना गई? तो बात कहाँ चल रही थी मेरे प्यारो? 5 सवाल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम उस बात पर आ जाए, हमारे नबी को मुहर्रम के महीने में क्या मिला? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ ना, हमारे नबी को मुहर्रम के महीने में, फिर बात खत्म करेंगे इंशाल्लाह। शहीद करबला 29 तारीख को इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बाकी होंगे। आप क्या कह रहे हैं? हमारे गुस्से की बादशाह मैंने सोचा होगा आपके मेहमान खाने में लेने वाले होंगे।
خیر سنو، یہ میں نے تھوڑا آپ کا موڈ فریش کر دیا. نبی پر ہونے والے انعامات محرم کے مہینے میں 3. ساتھ میں بولو، نبی پر ہونے والے انعامات محرم کے مہینے میں کتنے؟ بولو نا. اس لیے میں کہتا ہوں ہر نبی کو ملا 1، ہمارے نبی کو ملا 3. اور ہر نبی کو جو چیز ملی وہ زمینوں والی ملی، ہمارے نبی کو جو چیزیں ملی وہ آسمانوں والی ملی. ارے کہو نا سبحان اللہ، کہو نا. اب ساتھ میں سن کے جاؤ گے نا میرے پیارے دوستوں. کون سے مہینے میں؟ تو ساتھ میں کہو کون سے مہینے میں. اور ہمارے نبی کو کتنے انعامات ملے؟ ساتھ میں بولو، ہمارے نبی کو کتنے انعامات ملے؟ 3. آپ انگلی پر گنتے جاؤ. میرے پیارے دوستوں محرم کا مہینہ سنو، میرے پیارے دوستوں محرم کا مہینہ 10ویں محرم فجر کی نماز کے بعد، محرم کا مہینہ 10ویں محرم فجر کی نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فرمایا، میرے محبوب، اے میرے نبی، اللہ کے راج دلارے، اللہ تم کو پہلا انعام دیتا ہے، یہ انعام دیتا ہے. آج سے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا ہے. ساتھ میں کہہ دو، اللہ نے آپ کو، ساتھ میں کہو اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا. کوئی گناہ، ہمارے نبی کا کوئی گناہ. تو پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنایا؟ معصوم. چلو آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو محرم کے مہینے میں پہلا انعام دیا. اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی کو، بولو بولو ساتھ میں بولو، اللہ جل جلالہ نے ہمارے نبی کو معصوم بنایا. دوسرا انعام اللہ رب العالمین فرماتے جبرائیل میرے نبی کو جا کر کہہ دو، میرے نبی کو جا کر کہہ دو، دوسرا انعام محرم کے مہینے میں ہم نے فیصلہ کیا ہم اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کریں گے. ہم اپنے محبوب کو کیا عطا کریں گے؟ مقام. جب ہمارے نبی کو یہ خبر ملی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دینے والے؟ مقام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا، اللہ کیا دینے والے؟ کہا مقام محمود. کہا مقام محمود دینے والے؟ کہا. ہمارے نبی نے پوچھا ما ھذا المقام المحمود، یہ مقام محمود ہے کیا؟ یہ مقام محمود ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی چیز ہے. پھر ہمارے نبی نے پوچھا کیا وہ جنت ہے؟ یعنی مقام محمود کیا اللہ اس کو جنت دینے والا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب جنت تجھے نہیں، جنت تو تیرے امتیوں کو دینے والا. ارے بولو نا، جنت تو تیرے. اور ساتھ میں سنو، اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت تو تیرے امتیوں کو عطا کروں گا. کہو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے محبوب کسی کو دار السلام عطا کروں گا، کسی کو دار الماوا عطا کروں گا، کسی کو جنت المقامہ عطا کروں گا، کسی کو جنت عدن عطا کروں گا، کسی کو جنت نعیم عطا کروں گا، کسی کو جنت الفردوس عطا کروں گا. جنت تو تیرے امتیوں کو عطا کروں گا، تجھے تو مقام محمود عطا کروں گا. تجھے تو کیا عطا کروں گا؟ مقام. ہمارے نبی نے پھر پوچھا اللہ یہ مقام محمود ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا اوپر دیکھو، دیکھو اوپر دیکھو. ہمارے نبی فرماتے جیسے میں نے اوپر دیکھا، اللہ کی قسم، اللہ نے فرمایا 7 آسمان کے راستے کھول دیے. اوپر دیکھو 8 جنتوں کے راستے کھول دیے. اوپر دیکھو سدرۃ المنتہا کے راستے کھول دیے. اوپر دیکھو عرش کا راستہ کھولا. اللہ فرماتے مجھے دیکھو، اللہ فرماتے مجھے دیکھو، یہ میرا عرش ہے. اور دیکھو سامنے جو سفید محل ہے یہ مقام محمود ہے، یہ تمہارا مقام ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مقام محمود، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ جہاں تو وہاں میں، جہاں تو وہاں میں. اللہ نے فرمایا ہاں تیرے امتیوں کو جنت دوں گا، تجھے مقام محمود دوں گا. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا، میں تجھے دیکھ کر مسکراتا رہے گا. کتنے انعامات ہو گئے؟ بولو کتنے انعامات ہو گئے؟ تیسرا انعام کون سے مہینے میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے راج دلارے، میرے مرتضیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا محرم کا مہینہ میرے نبی تیسرا انعام بھی دے دے. قیامت کے میدان میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. کریں گے کہ نہیں کریں گے اللہ کا؟ ابھی آپ نے وقالی زبیر کو پڑھتے ہوئے سنا، ایسی آیت جو دل کو میرے دوستوں ہلا دے گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اللہ فرماتے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، آسمانوں کو چلا دوں گا، پہاڑوں کے ریزے ریزے کر دوں گا. اللہ فرماتے میرے محبوب تیسرا انعام قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، لیکن تجھے رسوا نہ کروں گا اور تیرے ماننے والے کو بھی رسوا نہیں کروں گا. تو تیسرا انعام میں تو ہم بھی آگے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور جو محمدی ہوگا اس کو بھی رسوا. کتنے نام ہو گئے میرے پیارے؟ اور میں جو بات پڑھا رہا ہوں
آپ समझोगे नहीं इंशाल्लाह, उस बात को समझोगे नहीं इंशाल्लाह. देखो मैंने हजरत अली के बारे में भी एक बात सुनाई नहीं सुनाई, अभी और भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह. हजरत फातिमा, हाँ मेरे प्यारो, एक बात मैं आपको बताऊं. देखो फैसला करना तो आपके हाथ में है, फैसला करना आपके हाथ में. ये वो महीना है जिस महीने में हजरत उमर भी शहीद हुए थे. और हुए कि नहीं हुए? पहली मुहर्रम को. मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लंबी बातें बाद में करूंगा इंशाल्लाह. सिर्फ एक वाकया मैं आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूँ. मेरे प्यारे, हजरत उमर के पास रौब था, दबदबा था, कुव्वत थी, ताकत थी, और आप बहुत बड़े समझे जाते थे नहीं समझ. हजरत उमर वो अकेले थे. मेरी माँ अपने बच्चों को किससे डराती थी? अरे बोलो किससे डराती थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे. और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रास्ते पर आते थे, इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते, उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है. ये हजरत उमर का पावर था. लेकिन सवाल ये पावर आया कहां से? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पावर आया कहां से? 3 बातें सुनो फिर फैसला करो पावर कहां से. सुनोगे? 3 बातें सुनोगे इंशाल्लाह. हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं? बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? 3. देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है. बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत है. और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना, कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम. और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख. हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए. मैं हजरत उमर की 3 बातें आपको सुना रहा हूं. कोई वक्त है ना आप लोगों के पास? 3 बातें सुन लो. सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों, हजरत उमर की अदालत कायम है. हजरत उमर की अदालत कायम है. हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला. हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी पर खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी. हजरत उमर कहते हैं, अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ. हजरत अबू मूसा अशअरी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा. हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला. वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया. और आप खड़े थे. बोलो आप खड़े खड़े पानी पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया. हजरत उमर फैसला कर रहे, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला. सुनना, हजरत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, तो आपको मालूम होगा ना, मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी. वो दरियाए नील जो मिस्र में, इजिप्ट में दरियाए नील, उसका पानी सूख गया. पानी सूख गया, दरिया नील, पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया. हजरत अम्र इब्न आस ने खत लिखा, उमर अमीरुल मोमिनीन, पानी सूख गया, पानी सूख गया. हजरत उमर ने चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा, चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा. किसको खत लिखा? दरियाई नील को. और जाकर अम्र इब्न आस के पास भेजा, कहा दरिया में रख दो, पानी आ जाएगा. दरिया में रख दो पानी. कौन? हजरत उमर. तो अम्र इब्न आस कहते मैं बड़ा हैरान हो गया कि चमड़े का टुकड़ा यहाँ रखेंगे तो कोई पानी आ जाएगा. और हजरत अम्र इब्न आस कहते कि पूरा मिस्र जमा हो गया कि मदीने के बादशाह ने खत भेजा है, दरिया को भेजा है. अरे मदीने के बादशाह ने इंसान को खत नहीं भेजा, जिन्नत को नहीं भेजा, किसी जानवर को नहीं भेजा. मदीने के बादशाह उमर ने दरियाए नील को खत भेजा. हजरत अम्र इब्न आस कहते मैंने वो चमड़े का टुकड़ा बंद था, मैंने दरियाए नील में रखा. हजरत अम्र इब्न आस कहते अल्लाह की कसम, थोड़ी देर में पूरा दरिया थपेड़े मारने लगा और आवाज आई, ये थपेड़े कयामत तक खत्म नहीं होने वाले. खत किसका था? वो उमर का पावर कैसा होगा, सोचो ना हजरत उमर का पावर कैसा होगा. लेकिन आज पानी पिया, कैसे पानी पिया? बोलो ना, कैसे पानी पिया? अब हजरत उमर को अदालत में लग गए, फैसले पर फैसला. थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फिर कहते अबू मूसा तुम पानी नहीं पिलाते हो? अरे पानी तो कम से कम मुझे पिलाओ, मेरा गला सूख गया. हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा अभी तो पिलाया मैंने आपको पानी, और देखो ये बर्तन रखा हुआ है. हजरत उमर ने बर्तन को देखा तो पूरा बदन कांपने लगा. कहा शरीफ तो कायमा, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया. हो मेरे प्यारो, देखो ये पावर कहां से आता. कहते मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया, मुझे मालूम भी नहीं, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया. हजरत उमर ने कहा जाओ, अब तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा, इसलिए कि अब तो कयामत में अल्लाह मेरा फैसला करेगा. अब मैं तुम्हारा किस मुंह से फैसला करूंगा? जो उमर खड़े होकर पानी पीता हो, क्या वो किसी का फैसला कर सकता?
جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا؟ حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ معاف آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا۔ اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو۔ دیکھو ان انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر، لیکن اللہ نے کیا فرمایا عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ روب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی، یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے۔ بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھوپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا کوئی بچانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رو رہے، کسی میں ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو؟ سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ اخیر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا روگے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسوؤں سے بھر گیا، کتنا روگے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیاروں یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر آیا ہے۔ اور میرے پیاروں بہت دیر ہو جائے گی، واقعہ اور سنا دیں پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا یہ تو ویسے تھک گیا، لیکن ایک واقعہ کو سنا دوں، بہت عجیب واقعہ ہے، سننے جیسا واقعہ۔ یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، یہ سب سنا، حضرت عمر کا زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے، میں سننا حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ۔ کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور۔ لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور کھا، حضرت علی فرماتے پھر صبح ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا،
फरमाते अल्लाह की कसम, जो कपड़ों में मैंने रात को नबी को देखा था उसी कपड़े में मैंने उमर को आते हुए देखा। हजरत अली फरमाते हजरत उमर ने फजर की नमाज पढ़ाई, पहली रकात और दूसरी रकात में वही सूरत पढ़ी जो ख्वाब में मेरे नबी ने मेरे सामने पढ़ी थी। और हजरत अली कहते जैसे फजर की नमाज हो गई, हजरत उमर ने कहा खजूर का टोकरा लाओ, वो बैतुल माल में खजूर का टोकरा लाओ। हजरत अली कहते रात को मेरे नबी ने भी तो खजूर का टुकड़ा मंगाया था। और फिर हजरत उमर ने कहा भाई सब में बांटो। हजरत अली कहते मैं कोने में बैठा था, मेरी तरफ हजरत उमर ने देखा और कहा अली बनाओ, मैं अपने हाथ से तुम्हें खजूर देने वाला हूँ। हजरत अली फरमाते मैंने जब खजूर को खाया तो इतनी मीठी मेरे दिल में तमन्ना हुई काश कि उमर मुझको दूसरी। और हजरत अली कहते वो तो रात को तो आंख खुल गई ना, तो ख्वाब खत्म हो गया, यहाँ से उमर थोड़ी जाने वाले। इसलिए हजरत अली कहते मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर एक खजूर दी, बहुत अच्छी लगी, दूसरी भी दे दो। हजरत उमर के आंखों में आंसू थे, कहा जब उन्होंने नहीं दी तो मैं कहां से दूंगी। कितने प्यार से फरमाया तो उन्होंने नहीं दी तो मैं कहां से। हजरत अली रो पड़े, कहा उमर तुमको मेरे ख्वाब का पता चल गया? कहा हाँ, अगर वो तेरे ख्वाब में आ गए तो क्या मेरे ख्वाब में नहीं? मेरे प्यारे ये उमर थे, भाई ये उमर थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप खुद अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, उमर को जो कुछ मिला वो नबी के दामन में मिला है, बोलो नबी के। इसलिए हम लोग भी नबी के दामन से वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह। अब हजरत उमर के बारे में और बहुत सारी बातें, लेकिन वो 29वीं तारीख को। अब मैं मेरे दोस्तों मैं भी थका हुआ, मैं आखिरी पॉइंट पर आना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है, कम से कम आधा पौना घंटा निकल जाएगा। आप लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? मेरे प्यारों देखो, हम फैसला करेंगे फिर बात पर जाएंगे। हम फैसला करें। एक मरतबा क्या हुआ, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती गर्मी, दोपहर का वक्त और बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी, वो अरब की गर्मी, चिलचिलाती गर्मी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बदन पर पसीने से शराबोर और आपके पसीने में मुश्क की खुशबू आवे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े आ रहे। सुनना, अल्लाह के रसूल अपने कमरे में आए, साथ में बोलो भाई सब बोलो, अल्लाह के रसूल अपने, ये बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में, जैसे अल्लाह के रसूल अपने कमरे में आए ना, अल्लाह के रसूल तो आ गए, कहां पर आ गए बोलो, अपने कमरे में। वहां पर एक सहाबी खड़े जिनका नाम है हजरत अबू अय्यूब। नाम याद रखो, क्या नाम है? हजरत अबू। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू अय्यूब मैं अपने कमरे में आया हूँ और मैं थका हुआ हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और थोड़ी देर किसी को भी अंदर आने, भाई थोड़ी देर किसी को भी अंदर आने। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं तो इतना खुश हो गया, तुम तो वह अखद तो इजाजतल बाब। हजरत अबू अय्यूब कहते मेरे नबी तो अंदर चले गए और आप आराम करने लगे। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं यूं खड़ा हो गया, यूं खड़ा हो गया। कहते मैंने दरवाजे के दोनों बाजू को, दरवाजे के दोनों पट को पकड़कर खड़ा हो गया। और हजरत अबू अय्यूब कहते अल्लाह की कसम मैं इतना खुश था कि आज मैं वॉचमैन बन गया तो मेरे नबी के घर का वॉचमैन बन गया। हजरत अबू अय्यूब कहते मैंने यूं दरवाजे को यूं पकड़ा और मैं अपने दिल में कहता था कौन है, किसमें हिम्मत है जो आज आवे, अरे अबू अय्यूब जान दे देगा। लेकिन मेरे नबी की नींद को खराब होने, मैं बहुत खुश, मेरे नबी की निगरानी, मेरे नबी का वॉचमैन, मैं मेरे नबी की निगरानी करता, वो बहुत खुश है हजरत अबू अय्यूब। हजरत अबू अय्यूब कहते इतने में तो 5 साल के हजरत हुसैन हजरत हुसैन कहते वो दौड़े दौड़े आ रहे। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं समझ गया अंदर ही जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे अंदर। तो हजरत अबू अय्यूब कहते मैं सोचने लगा ये बच्चे को रोकूं कि न रोकूं। कहते मैंने यूं पकड़ के खड़ा था, कोई जाए कैसा। कहते मैं तो सोचता था कि रोकूं नहीं रोकूं, वो तो मेरे हाथों के नीचे से चले गए। हजरत अबू अय्यूब कहते हिम्मत भी नहीं हुई कुछ, वो तो मेरे हाथों के नीचे से चले गए। लेकिन हजरत अबू अय्यूब कहते जितने जोर में पकड़ा था उतने जोर में छोड़ भी दिया। इसलिए मैंने सोचा आप क्या फायदा, अब तो वो चले ही गए हैं। हजरत अबू अय्यूब कहते मैंने यूं थोड़ी सी आंख पीछे की देखा कि क्या हो रहा। हजरत अबू अय्यूब कहते हैं अल्लाह की कसम मैं तो हैरान हो गया, वो तो जाके नबी के मुबारक कदम पर बैठ गए। कौन? हजरत हुसैन 5 साल की उम्र, नबी के मुबारक कदम पर बैठ गए। हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना चौंका कि मेरे नबी की नींद खराब हुई। अब मालूम नहीं मेरे नबी क्या क्या कहेंगे, लेकिन हजरत अबू अय्यूब कहते मैं इतना खुश हो गया कि मेरे नबी तो मुस्कुराने लगे। अरे मेरे नबी मुस्कुराने लगे और क्या कहने लगे, इरका या हुसैन, इरका या हुसैन। यानी हमारे नबी कहने लगे मेरे नवासे पाँव पर बैठे हो, आओ ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मेरे नबी ने सीने पर बिठाया और कहा हुसैन तेरी जगह मेरा पाँव नहीं, तेरी जगह मेरा दिल रखा हुआ।